Everyone, welcome to the channel. So today we are going to discuss that how we will get the data of options for FNO stocks and index. So without wasting time, let's continue the topic. And if you are visiting the channel for the first time, so I request you to kindly subscribe my channel and hit the bell icon. So whenever I will upload my next video, you will get the notifications. As today was weekly expiry and yesterday I have created a video for same. So if you want, you can watch this video. This is the video. तो यहाँ पे जो मैंने आपके साथ रेंजेस डिस्कस की थी, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट वहीं पे ही जो है आज एक्सपायर हुआ है. सो आप जाके देख सकते हैं. एंड लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट माय सॉफ्टवेयर. मैं बस इसको यूज कर चुका हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ. एंड दिस इज नॉट माई सॉफ्टवेयर. सो आप ये फ्री अवेलेबल था, सो आई जस्ट वांट कि यू शुड यूज इट. एंड इफ इट्स यूजफुल फॉर यू देन इट्स गुड. सो इसका लिंक मैं आपको आई विल प्रोवाइड यू इन माई टेलीग्राम चैनल. सो यू कैन सी दैट यहाँ पे क्या है ना, हियर यू हैव टू ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज मोड, एंड व्हेन यू क्लिक हिट ऑन द मोड बटन, इट विल जस्ट change the stocks and index. So if you do trade in index, so you can just get the data of Nifty, Bank Nifty and Film Nifty. And if you want to check the data of any stock, so you can just hit this button and then you can select the stock from the list. Suppose like I usually trade in index, so like if you are index trader, then you just go, suppose I trade in Bank Nifty and today was the expiry, so here you get the example. Like यहाँ पे क्या है, यू नीड टू एंटर द स्ट्राइक. लाइक कि यहाँ पे जैसे है कि यहाँ पे आपको एटीएम की स्ट्राइक यहाँ पे एंटर कर सकते हो. लाइक सपोज मॉर्निंग में देखते हैं कि मार्केट आज ओपन कहाँ पे हुआ था, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार. सो एज यू कैन सी, मार्केट जो आज ओपन हुआ था 37,700 के अप्रोक्स. सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट पुट द एटीएम स्ट्राइक ओवर हियर 37700, and it will ask you in which time interval you need to record the data. So it's up to you. You can record in 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5, 10, 15. So if you are index trader, I suggest you to record for 3 to 5 minutes, and 5 minutes is sufficient. So if you are trading options, then go for 10 to 15 minutes, because stock options have less liquidity than in the index. So then you need to click the start button. Another pop-up window will open, and here you will get the data. So what you can see, अभी क्या है ना, अभी it will not like update because अभी मार्केट क्लोज हुआ है. जैसे आप इसको लाइव मार्केट में जब रन करोगे, तो यहाँ पे जो है आप जितना भी यू विल जस्ट पुट दैट इंटरवल, तो वहाँ पे जो है टाइम, उस टाइम पीरियड में जो है वहाँ पे डेटा आना शुरू हो जाएगा. So let's read this. So what is, let me show you. इन जिनका ये सॉफ्टवेयर है, उन्होंने पूरा यहाँ पे समराइज किया हुआ है. Just read me. तो ये सारी जो पॉइंट्स यहाँ पे दिखे, हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ पे आके. मैं मिनिमाइज कर दूंगा, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं. सो हियर यू आर गेटिंग द टाइम्स में कोई इशू नहीं है. दिस इज द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर इंडेक्स स्टॉक, जो भी इसको आप रिकॉर्ड करो. सो हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट stocks or index. And what is call sum? Here you are getting the call sum. Call sum is, here it mentioned, calculated the sum of the changes in call open interest contract of the given strike and the next immediate to strike in thousand for index mode and tens for stock modes. So here you can see, यहाँ पे जो आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है, that is 22.2. ये जो इंडेक्स है, तो ये thousands में आएगा. अब अगर आप स्टॉक्स का, if you record data for stocks, then it will come in tens. So here what is saying, that some of the changes in the call open interest contract of the given strike, like we have entered 37,700 price, right? तो यहाँ पे क्या करेगा, here it will show you the next immediate two strike prices. Like it will show you next two OTM strike price, like ATM and next far OTM. And like if you have selected 37,000
700, then it will show you the, it will in call sum it will show you the strike 37.7, 37.8 and 37.900 call options. And similarly in put sum it will show you the above two strikes data. Like अगर हमने लिख डाला है कि 37,700, तो it will show you of 37,700, 37,600 and 37,500. And what is the difference? Difference is calculated between the call sum and put sum. If it's very positive, if it's very negative, it's bullish. If it's very positive, then it's bearish. Else is a sideways. तो यहाँ हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार. सी यहाँ पे जो आपका डिफरेंस आ रहा है, राइट, ये डिफरेंस जो आ रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो है डिफरेंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ इन्होंने कि अगर यहाँ पे आप इसको, ये आपका लिखा है चेंज इन difference between the call sum and put sum. If it's very positive, like if it's very negative is bullish. You can see if it's very negative is bullish, if it's very positive then it's bearish, else it's a sideways. तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये जो है बड़ा पॉजिटिव नंबर है, तो ये bearish हम लोग को शो कर रहा है डिफरेंस. और नीचे चलते हैं. नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉल बाउंड्री है. यू कैन सी देयर इज ऑप्शन फॉर कॉल बाउंड्री. सी so change in call open interest for two strike price above the given strike price, this is used to determine if call writers are taking new positions. तो यहाँ पे क्या है, वही जो हमारी जो स्ट्राइक हमने दी है उसकी जो ऊपर वाली दो स्ट्राइक्स होंगी, तो ये ओटीएम का कहलाप होता रहा. तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये स्ट्राइक आ रही है आपकी जो है चेंज इन फॉर टू स्ट्राइक ऑफ द change in call open interest for two strike above the given strike price. This is used to determine if the call writers are taking new positions bearish or exiting their position bullish in thousands for index and tens for. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ये आपको शो करेगा कि कॉल राइटर्स जो है अपनी जो है नई पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं जो, या वो अपना जो है वो पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं. और यहाँ पे आपको सिमिलरली पुट बाउंड्री में सेम जाता है चेंज इन पुट ओआई फॉर द गिवन स्ट्राइक. दिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन इफ पुट राइटर्स आर टेकिंग न्यू पोजीशन बुलिश और एग्जिटिंग देयर पोजीशन बेयरिश. तो यहाँ पे अभी तो एक्सपायरी हुआ था, लास्ट का डेटा है, तो यहाँ पे अभी आपको दोनों सब एक्सपायरी का लास्ट टाइम का डेटा आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है 3:30 बजे का. सो इट विल शो नेगेटिव ओनली क्योंकि सब पोजिशनें वहाँ पे क्लोज हुई थी, राइट. एंड सो हम नेक्स्ट क्या है, कॉल इन द मनी. कॉल इन द मनी आईटीएम. तो ये इन द मनी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे जो हम लोग का है कॉल इन द मनी का ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा आपको, कॉल आईटीएम का ऑप्शन. दिस इंडिकेट द बुलिश ट्रेंड कुड कंटिन्यू एंड वैल्यू कुड क्रॉस 4 स्ट्राइक अबव गिवन स्ट्राइक. तो यहाँ पे क्या है, इट इज कैलकुलेटेड एज अ रेशियो ऑफ पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग एट द 4th स्ट्राइक अबव द गिवन स्ट्राइक. इट्स एब्सोल्यूट रेशियो. तो यहाँ पे हम लोग का एक पुट कॉल रेशियो का जो थ्योरी होता है वो यहाँ पे अपना ये यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे आपको लिख रहा है कि जो हम लोग ने जो स्ट्राइक आपने जो स्ट्राइक रिकॉर्ड करने के लिए इंसर्ट की है उसके जो है 4 स्ट्राइक ऊपर जाके जो है उसका ये पूरा वहाँ पे पुट राइटिंग कॉल राइटिंग का जो रेशियो कैलकुलेट करता है. और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इफ़ द एब्सोल्यूट रेशियो इज़ ग्रेटर देन 1.5 देन इट्स बुलिश साइन. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर ये कह रहा है कि कॉल इन द मनी का रेशियो जो है जब ये 1.5 से ज़्यादा है देन इट्स अ बुलिश साइन. सिमिलरली यहाँ पे सेम वही जो है पुट में क्या गया, दैट इंडिकेट्स दैट बेयरिश ट्रेंड कुड कंटिन्यू एंड वैल्यू कुड क्रॉस 2 स्ट्राइक बिलो द गिवन स्ट्राइक प्राइस. तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये जो नंबर जब आपका ये जो है हाईलाइट हो रहा है 1.5 तो आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आपकी जो स्ट्राइक जैसे मान लो आपने दिया 37,700, तो इट्स सेइंग कि यहाँ पे जो ये नंबर इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हमारा जो स्पॉट जो आपने स्ट्राइक दिया है उससे यहाँ की इतनी फर्दर मूवमेंट आ सकती है, पॉसिबिलिटी है. जैसे कॉल, सो कॉल का जो बता रहा है कि यहाँ पे लिखा है कि दिस इंडिकेट द बुलिश ट्रेंड कुड कंटिन्यू एंड वैल्यू कुड क्रॉस 4 स्ट्राइक, लाइक और ऊपर जा सकती है. 37,900 है, तो मान लीजिए ये कह रहा है कि अगर इतना इससे ज़्यादा रेशियो आ रहा है तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई दैट द स्पॉट विल ट्रेड इन अ हायर रेंज. तो हमारी जो 37,900 है वो लगता है एटीएम उस समय हम लोग का आ जाए 37,900 में आप 400 अप्रॉक्स ऐड करोगे तो आएगा 38,300. तो वहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है. और यहाँ पे पुट इन द मनी में क्या, दिस इंडिकेट दैट बेयरिश ट्रेंड कुड कंटिन्यू एंड वैल्यू कुड क्रॉस 2 स्ट्राइक्स बिलो द गिवन स्ट्राइक प्राइस. तो यहाँ पे जब ये कह रहा है जब ये आपकी वैल्यू जो है 1.5 से ज़्यादा दिखा रही है यहाँ पे पुट इन द मनी में, तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक्सपायरी था अभी, आप उस समय अगर रिकॉर्ड करें तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होता 2 बजे के आसपास. तो यहाँ पे आपको यू कैन सी यहाँ पे कह रहा है कि जब भी वो स्ट्राइक जो है 1.5 से इसका पुट
इन द मनी जो आपकी जो ऑप्शन है यहाँ पे अगर 1.5 से ज़्यादा हो जा रहा है तो वहाँ पे जो मान ली स्ट्राइक जो है 37,700 है, तो वहाँ 37,500 तक की पॉसिबिलिटी होती है, जो कि यहाँ पे आज हम लोगों को देखने को मिला। नीचे चलते हैं लेवल डेटा में। लेवल डेटा यहाँ पे आपको दिखा रहा है, उसमें क्या क्या है, ओपन इंटरेस्ट अपर बाउंड्री यहाँ पे है, आपका कॉल एग्जिस्ट है, पीसीआर है, पुट एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बाउंड्री रेंज, जो हम लोग की स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट चल रहा है, जिसे हम लोग जो भी स्ट्राइक डाली है उस पर्टिकुलर इंडेक्स का, उस स्टॉक्स का, उस स्क्रिप्ट का जो भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा वो स्ट्राइक 1 पे आ जाएगा, और जो सेकंड हाईएस्ट होगा वो 37,400 सेकंड हाईएस्ट है, तो ये सेकंड पे आ गया। तो हेयर आप so from here what you get to know that you all know कि जो highest open interest price stock, जो highest open interest की strike price होती है, that always act as a support or resistance. If it's in call side then it will act as a resistance, and if it's in put side then it will act as a support. सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू विल गेटिंग बोथ द ऑप्शंस कि आपको फर्स्ट और सेकंड जो है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। और ओपन इंटरेस्ट नॉर्मली जो है आपका यहाँ पे ओआई डेटा है वो दिखा देता है कि यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है इफ द कॉल सम इज मोर देन द पुट सम देन ओआई इज कंसिडर बियरिश। तो यहाँ पे आपको जो दिखा रहा है कॉल सम जो है पुट सम से ज़्यादा है, तो आपको जो है बता रहा है कि वहाँ पे कॉल रेटर ज़्यादा एक्टिव है, तो बेसिकली वो बियरिश है। और वहीं पे इफ द पुट सम इज मोर देन द कॉल सम देन द ओआई इज कंसिडरिंग इट्स बुलिश, क्योंकि वहाँ पे पुट रेटर ज़्यादा है। एटीएम में ऐसा पुट, देखिए क्या होता है ना, द थिंग इज की ऑप्शन चेंज जो है वहाँ पे ऑलवेज देयर इज अ बायर एंड देयर इज सेलर। कोई भी स्ट्राइक में कहीं भी काम हो रहा है देयर इज वन बायर एंड वन सेलर, तो ये पूरा एक कॉम्बो है। सो सब हम लोग की जो हाइपोथेसिस है कि एटीएम के पास जो है, क्योंकि आप इफ़ यू आर शॉर्टिंग एन ऑप्शन देन यू नीड अ ह्यूज मार्जिन। आपको बाय करने के लिए बस प्रीमियम जितना अमाउंट पे करना है, बट इफ़ यू आर शॉर्टिंग दैट ऑप्शन देन यू नीड मार्जिन। तो मार्जिन का जो रिटेलर जो भी लाइक रिटेलर्स हैं उनके लिए थोड़ा मार्जिन का इशू रहता है। बाकी जो स्मार्ट मनी है इसके बाद मनी का कोई इशू नहीं है, तो उनको लिए वो बेसिकली एटीएम पे ज़्यादातर नियर एटीएम वही सब काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको जो मार्जिन का कोई इशू नहीं रहता है। पीसीआर रेशियो तो वो उसमें आपको आई गेस पता ही होगा, पढ़ लेते हैं। सम टोटल ऑफ पुट ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ कॉल ओपन इंटरेस्ट। जो भी कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है, उसका जो है सम को डिवाइड कर देते हैं। तो ये पुट कॉल रेशियो पी पुट डिवाइडेड बाय कॉल। कॉल एग्जिस्ट यहाँ, दिस इंडिकेट इफ द कॉल लेटर एग्जिस्टिंग देयर नियर गिवन स्ट्राइक प्राइस इन द लेटेस्ट ओआई डेटा। तो हम लोग जो भी स्ट्राइक प्राइस डाली है उसमें जो कॉल हमें सजेस्ट करता है कि वहाँ पे जो है उस नियर गिवन स्ट्राइक प्राइस में जो हम लोग दी गई है वहाँ पे जो कॉल सम का जो डेटा है अगर वो 0 से कम हो रहा है, यहाँ चेंज इन ओआई कॉल का जो सम है कॉल बाउंड्री में अगर वो भी 0 से कम है, तो वहाँ पे इट्स इंडिकेट दैट द कॉल राइटर्स हैव बीन the call writers are existing their position, the bulls have a clear path. सिमिलरली इसका अपोजिट यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। दिस इंडिकेट्स द पुट राइटर आर एग्जिस्टिंग नियर गिवन स्ट्राइक प्राइस इन द लेटेस्ट ओआई डेटा रिकॉर्ड। तो यहाँ पे अगर भी पुट सम जो है 0 से कम है और यहाँ पे चेंज इन ओआई पुट सम का जो है वो भी 0 से कम है, तो वहाँ पे जो है पुट राइटर एग्जिस्ट कर रहे हैं। Call in the money. This indicates if the call letter are also existing far OTM strike price, 4 strike price above the given strike price. तो यहाँ पे ये बताता है, मान लीजिए कि आपने जो है 37,700, suppose you have shorted that call CE of 37,700, and if you see that there is any chance of reversal, तो वहाँ पे कह रहा है कि कॉल इन द मनी सम ये आपको इंडिकेट करता है कि उसके जहाँ पे आप जो एटीएम के पास है, यहाँ जो भी स्ट्राइक है उसके अगर नीचे के भी जो फार अभी ओटीएम ही है वहाँ के भी अगर वो पोजीशन क्लोज कर रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि एक वहाँ पे बड़ा मूव आने वाला है, शोइंग एक्सट्रीम बुलिशनेस। कंडीशंस आर इफ कॉल लेटर आर एग्जिस्टिंग, यहाँ कुछ कंडीशंस यहाँ मेंशन किए। कंडीशंस आर इफ कॉल लेटर आर एक्सटिंग देयर फार ओटीएम पोजीशंस एंड द पुट राइटर आर राइटिंग इन द सेम स्ट्राइक. So if the absolute ratio is greater than 1 point, then it's a bullish sign. This signal also changes to yes if the change in call OI at the far OTM is less than 0. तो यहाँ पे आपको yes आकर शो हो जाता है, राइट। अभी ये एंड का डेटा है, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं आपको शो होगा। आप जब लाइव मार्केट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, एंड आई विल प्रोवाइड यू दिस कंटेंट ऑल्सो, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट यू जस्ट आप कुछ टाइम इसको टेस्ट करिए, राइट। इफ़ यू थिंक कि एनीथिंग इज़ नॉट वर्किंग, देन आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली कुछ रूल्स में चेंज कर सकते हो। एंड पुट इन द मनी, दिस इंडिकेट इफ द पुट राइटर आर ऑल्सो एग्जिस्टिंग फार ओटीएम स्ट्राइक प्राइसेस।
सपोज लाइक कि यहाँ पे आपका जो है पुट जो राइटर है उनका व्यू था बुलिश था, दे हैव शॉर्टेड पुट्स बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो अप, बट वहाँ पे क्या हुआ, कुछ रिवर्सल दिखी, वहाँ पे रेजिस्टेंस दिखी, प्राइस वहाँ पे रेजिस्ट होल्ड करके वहाँ से रिट्रेस होने लगा। सो वहाँ पे ये आपको दिखाता है कि वहाँ पे जो फार ओटीएम है अभी तक वहाँ पे स्ट्राइक पहुँची भी नहीं है, एटीएम वहाँ पे अभी स्पॉट ट्रेड भी नहीं कर रहा है, स्टिल दे आर एग्जिस्टिंग देयर पोजीशंस, तो वहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम बियरिशनेस है। सो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे कंडीशंस इफ द पुट राइटर existing their far OTM position and the call letter are you writing at the same strike price. If the absolute ratio is greater than 1.5, then it's a bearish signal. This signal also changes to yes if the change in put OI at the far open is less than 0. तो यहाँ पे similarly यहाँ पे वो yes आपको show हो जाएगा. So this was all about this indicator. So now I just want you should just आपको इसको read करना आना चाहिए. आपको ये मैं पूरा डेटा प्रोवाइड कर दूंगा, ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, कहाँ से आप इसको डाउनलोड करोगे. सो जैसे काफ़ी लोगों का क्वेरी था कि हाउ फ्रॉम वेयर वी गेट द डेटा फॉर स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स का तो यूजली मिल जाता है. सो व्हाट यू कैन डू, आपको यहाँ पे मैंने दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हियर यू कैन जस्ट, अगर आपको इंडेक्स का द बेनिफिट ऑफ दिस इज, अगर आपको इफ़ यू नीड टू ट्रैक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एट सेम टाइम, सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे जो है आप एक और विंडोज़ को ओपन कर लोगे तो यहाँ पे आपको जो है दूसरी स्ट्राइक प्राइस का आप डाल सकते हो, वो उसका डेटा शो करेगा. इन सेम केस लाइक आपने जो है 27,900 डाला था, वहाँ से स्ट्राइक कुछ मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, तो इंस्टेड ऑफ आप जो है उसकी इस पे उस सेम स्ट्राइक पे ना स्टिक होके आप दूसरी विंडो ओपन कर सकते हो, वहाँ पे दूसरा डेटा ओपन हो जाएगा. So this was it. I hope you like the video. If you do like the video, then please hit the like button. And as we have discussed in our Telegram channel, so from now weekends में हम लोग स्विंग का कुछ सेटअप्स डिस्कस करेंगे, स्विंग के कुछ स्टॉक्स जिसमें मोमेंटम आ सकता है, तो हम लोग वो वीकली हम लोग डिस्कस करेंगे.